Hello friends, welcome to my YouTube channel and let's have a today discussion regarding the budget 2021. Friends, till now we might have read about many articles related to the budget, might have listened the discussions about the budget, what was the positive, what was the negative, and what are the major decisions that has been taken by the government. Friends, but we are not having any logical analysis. Why? What is the perspective of the government towards the nation? What decisions are taken by the government and what its implicate? What are its implication to the nation building? Friends, अगर हम बात करें तो खाली ये सब बातें हम 2 दिनों से सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये किया तो ये होगा ये होगा, पर जितने भी डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए उसको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स में कैटेगराइज करें फ्रेंड्स तो बहुत अच्छा रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि देश सबका है, राइट? तो देश में सबको कोई भी बजट आता है फ्रेंड्स तो सबको एप्लीकेबल नहीं होता है, किसी के लिए अच्छा होता है किसी के लिए बुरा होता है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये बजट के बारे में कि बजट्स के अंदर कौन से पॉइंट्स किसके लिए एप्लीकेबल हुए और किसके लिए हेल्पफुल रहेंगे और किसके लिए बहुत पॉजिटिव है और किसके लिए बजट काफी नेगेटिव फैक्टर साबित हो सकता है आने वाले समय में, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ बजट. Friends, you just have to look over the screen that I have prepared, right? Okay, so discussion will be going to be happen 2 points, that is positive and negative points. Second, first of all look over the positive points. What are the positive points that I have found out for? I can say I have categorized from the budget after reading the whole budget, right? So first is all about the development of asset management company. It is not about that mutual fund company asset management. It is totally different concept that I will going to discuss in with an example or also in detail, right? Second is all about the good to go for an infra, rail and metro sector. Third is all about the implementation of IT fiscal scheme, that is income tax fiscal scheme. Fourth is all about the increase in capital expenditure. Fifth point is all about green tax and scrapping policy. Sixth point is all about development of Chinese school. Seventh point is all about huge expenditure on health, infra and defense. And eighth point is all about import duty raise. So friends, these all are the 8 points that I want to discuss in this video. Friends, in every budget there are some positive points and there are also some negative points that we are all have to accept that, right? It is not that हमारी गवर्नमेंट ने मैंने इलेक्ट किया है तो सब कुछ अच्छा ही होगा. फ्रेंड्स, ऐसा इंट्यूशन अपने माइंड में नहीं रखना चाहिए कभी भी. कोई भी लाइफ सिचुएशन में अगर पॉजिटिव और साथ में नेगेटिव पॉइंट्स अटैच होते ही है तो वो बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो पहला जो नेगेटिव पॉइंट है फॉर द नेशन बिल्डिंग. First is all about this investment of POC companies. Second is all about no relaxation in income tax slab rate. Third is all about passing the parcel. बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा. Fourth, looks to be a political manifesto friends. तो ये 4 नेगेटिव पॉइंट्स मुझे देखे मैं आपको आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स. So keep watching till the end. Okay. सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के रिगार्डिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया, जो आपको मैंने लिस्ट बताई थी 8 पॉइंट्स की, वो मैं आपको डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स. सो सबसे पहला डिस्कशन है वो है डेवलपमेंट ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी फ्रेंड्स. सो इन अगर मैं थियरी पॉइंट्स की बात करूं तो मैंने कंटेंट रेडी किया है जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. तो इन पास्ट मैनेजमेंट एक्ट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू लुक ओवर द एनपीए एंड ग्रोथ रेट ऑफ एनपीए which remains ineffective for the banking sector. For example, IBC Act have been introduced by the government in the term of Arun Jaitley because IBC का जो एक्ट है फ्रेंड्स वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है और टाइम भी काफी लगता है और उसके हिसाब से अब जो इंसॉल्वेंसी करवानी पड़ती है, जो लिक्विडेट करने का प्रोसीजर होता है वो काफी बड़ा चल रहा है फ्रेंड्स. और एनसीएलटी की तरफ से वो प्रोसीजर हो जाती है तो वो काफी लेंथी पड़ जाता है और काफी कॉस्टली पड़ता है और इसके वजह से बैंकिंग कंपनीज है उनको काफी टाइम हो जाता है कोई भी एसेट को, कोई भी एनपीए एसेट को लिक्विडेट करने में और रिकवर करने में फ्रेंड्स. तो गवर्नमेंट ने एक बैंक बनाई है उसको हम बोलते हैं बैड बैंक. क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बैड बैंक. सो उनके 4 पर्पस जो निकल के आ रहा है. सबसे पहला है कि वो लोन को रिस्ट्रक्चर करते हैं. सेकंड कहते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. कोई भी कंपनी अगर किसी नॉट एनपीए बन है मींस उनसे हम बैंक है और हमने किसी कंपनी को लोन दिया और वो कंपनी सामने हमको पैसे रिपेमेंट नहीं कर पाए तो वो जो भी हमने लोन लिया बैंक के लिए जो लोन दिया वो उनका एसेट है बैंक के लिए तो वो एनपीए हो गया फ्रेंड्स. तो कोई भी कंपनी अगर लोन रिपे नहीं कर पाए तो अभी तक क्या हो रहा था कि बैंक अपने माथे पे लेके घूम रही थी, ओह मेरे पास इतना सारा एनपीए है क्या करेंगे, और थोड़े सालों के बाद वो जो भी एनपीए है रिकवर नहीं कर पा रही है फ्यूचर तो वो बैंक को लॉस की तरह दिखाना पड़ता है, लॉस करना पड़ता है इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट. तो काफी लॉस देखी कॉन्सेप्ट था. इसकी वजह से बैंक काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी और बैंकिंग की जो लिक्विडिटी कह सकते हैं कॉस्ट थी, लिक्विडिटी कॉस्ट और आई कैन से ऑपरेशन कॉस्ट काफी कम हो रही थी और आई कैन से ओवरऑल बिजनेस में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता था, राइट?
तो जिसकी वजह से बैड बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया है, और गवर्नमेंट इसके लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को चूज करेगी जो बैंकिंग इंडस्ट्री में काफी सालों से काम कर रहे हैं, जो ये काम करेंगे, राइट। तो ये एक यूनिक खाली कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स। तो एग्जांपल समझते हैं कि एग्जांपल बैड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया हुआ है फ्रेंड्स। सपोज एसबीआई बैंक इज देयर व्हिच इज हैविंग अ 1 लाख करोड़ एनपीए, राइट। एसबीआई के पास मैं एसबीआई हूं और मेरे पास 1 लाख करोड़ का एनपीए है, मैंने किसी को लोन दिया, उन्होंने रिपेमेंट नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, बैड बैंक है जो दे सकते स्क्रीन पे, बैड बैंक को मैं बोलूंगा भाई मेरा असेट है वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, वो सामने वाले पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, मैं क्या करूं। तो बैड बैंक बोलेगी लाओ आप मेरा जो भी आपका एनपीए हो अब हमको दो, हम आप आगे देख लेंगे, बाकी आप तो भूल जाओ। तो बैड बैंक जो असेट परचेस करेगी हमसे, एनपीए परचेस करेगी, तो वो सस्ते भाव में लेगी, मींस थोड़ा डिस्काउंट रहेगा। जैसे कि मैं सिंपल बात करूं तो 1 लाख करोड़ का जो एनपीए है वो बैड बैंक करेगी 80,000 करोड़ में अप्रॉक्स फॉर एग्जांपल, और बैंक क्या करेगी, बैड बैंक उस एसेट को लिक्विडेट करेगी, जो भी उसके रिलेटेड जो भी लिटिगेशन होने चाहिए, जो भी केस होंगे वो अकेले बैड बैंक जाके लड़ेगी, वेदर इन द एनसीएलटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी कोई प्रोसीजर काम होगा इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेटिंग द असेट्स, वो सारा काम बैड बैंक करेगी। उसकी वजह से बैंक का जो काम था कि अपने यार कुछ भी लोचा हुआ तो अपने लीगल एक्सपर्ट को भेजना, जो खर्चे होते थे वो काफी कम हो जाएंगे फ्रेंड्स, राइट। तो ये सबसे बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का, और आई कैन से इट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस unless and until this procedure is implemented in a successful way friends। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से मार्केट सेंसेक्स 46,000 के लेवल से 50,000 के लेवल में पहुंच गया सिर्फ 2 दिन के अंदर फ्रेंड्स, और सेंसेक्स ऑलमोस्ट अराउंड 3600 लेवल का रिकवरी दे दिया है, और दैट्स ऑल द बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी एंड ऑल द बैंकिंग स्टॉक्स, राइट। तो ये जो स्टेप था, ये स्टेप ने काफी ज्यादा इफेक्ट किया है हमारे स्टॉक मार्केट को फ्रेंड्स, राइट। ओके, सेकंड पॉइंट है गुड टू गो फॉर इंफ्रा रेल एंड मेट्रो सेक्टर फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं स्टॉक्स की डिस्कशन करता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि इंफ्रा स्टॉक्स में काफी ज्यादा फोकस किए, राइट। तो मैं इंफ्रा के लिए एनसीसी, राइट, सेकंड है एनएचपीसी जो पावर सेक्टर है, तो एनएचपीसी, एनसीसी एंड आरवीएल, ये तीनों स्टॉक्स मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया था फ्रेंड्स, और ये तीनों ने अभी भी अच्छा खासा रिटर्न दिया, क्योंकि मुझे पहले भी पता था कि जो इंफ्रा स्पेंडिंग है वो आने वाले समय में क्यों बढ़ने वाली है। उसके भी 3 रीजन है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का फुल फोकस है टू बूस्ट द अपॉर्चुनिटीज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फ्रेंड्स। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि एजुकेटेड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो फैक्टर है वो काफी बड़ा है फ्रेंड्स, और जो उनका जो क्वांटम ऑफ पर्संस, आई कैन से क्वांटम ऑफ पीपल दोस हु आर देयर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दैट आर टू मच, राइट, एंड वी हैव टू टेक केयर अबाउट दैट पर्टिकुलर सेक्टर आल्सो फ्रेंड्स। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर, ऑल दिस अदर सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन which the government is focusing to provide huge amount of employment to the unorganized people. Second, 270 projects have been planned to prepare in the upcoming times. That is almost around 1.1 lakh crore rupees that has been commissioned by the Ministry of Finance for the infrastructure project. Third, will aid the transport and logistic sector. Friends, अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे इंडिया में जो पहले थोड़े सालों के पहले की बात करें फ्रेंड्स, तो उस वक्त जो भी ग्रोथ था ट्रांसपोर्टेशन की जो स्पीड थी काफी कम थी, क्योंकि पहले रोड्स बहुत कम हुआ करते थे, हाईवेज कम हुआ करते थे, तो जिसकी वजह से जो एक्सेसिबिलिटी थी ट्रांसपोर्टेशन की वो काफी धीमी थी, और इसकी वजह से बहुत सारे गुड्स जो पेरिशेबल नेचर के हुआ करते थे वो जल्दी ही खराब हो जाते थे, और इसकी वजह से बहुत लोगों को, एग्रीकल्चर फार्मर्स को भी काफी लॉस बेयर करना पड़ता था, राइट। दैट इज आई कैन से इट इज एबनॉर्मल लॉस फॉर ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स, राइट। तो जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, रेल का प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बट अदर देन दैट दे विल आल्सो प्रोवाइड अ गुड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, राइट। ओके, थर्ड point is all about implementation of income tax scheme friends। basically ये जो income tax scheme है काफी important था, और I can say it is a master stroke played by the Modi government for the all the bureaucrats, or I can say income tax corrupted officer. I don't want to say that all of them are the corrupt officers, but they are having good sign about the corrupt that they have done in the past few years, or I can say decades. So that type of corrupting nature have been stopped by the government through this particular stream, right? And the focus will be there to improve the transparency and online the honest, that our honorable Prime Minister has said that those who are going to provide honest information
will be going to reward in the upcoming times. So transparency एक main focus था गवर्नमेंट का इस प्रोजेक्ट को लेकर, राइट. सेकंड, इट बूस्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू, क्योंकि पहले ऐसा काम हुआ करता था कि कोई भी कुछ भी काम हो तो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके कोई भी काम अपना इनकम टैक्स ऑफिस सेट कर लेते थे, अपना रेवेन्यू को इवेट कर लेते थे, राइट. और साइड में कर देते थे, जो भी इनकम होती थी वो हम गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट होने नहीं देते थे, क्योंकि जो काम होता था वो नीचे बेस ग्राउंड बेस से ही खत्म हो जाता था. जो वो फैक्टर था फ्रेंड्स, वो भी रिमूव हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम को से लेके. थर्ड पॉइंट, क्विक रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट. फ्रेंड्स अभी स्कीम है विवाद से विश्वास. तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने यहाँ पे फोकस किया है कि जो भी केसेस चल रहे हैं इनकम टैक्स के वो जल्दी और आसान तरीके से कंप्लीट हो जाए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट में भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, जो इनकम टैक्स के केसेस होते हैं, राइट. तो वो गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि जो भी छोटे मोटे केसेस है उसको क्विकली रिजॉल्व कर दे. और जब फिफ्थ स्कीम आएगा फ्रेंड्स, फिफ्थ स्कीम आएगा तो जो भी डिस्प्यूट होगी वो क्विकली एक टाइम 1 डे सेकंड टाइम 2 टाइम में कंप्लीट करने का गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर एम है. ओके, पहले ऑलरेडी क्या होता था फ्रेंड्स कि हम डिपार्टमेंट में जाते थे, राइट. डिपार्टमेंट में जाने के बाद ऑफिसर से मिलते थे, ऑफिसर बोलता कि इतने पैसे लगेंगे, ये पैसे लगेंगे, वो सब ऑल दैट टाइप ऑफ डील विल बी गोइंग टू हैपन इन द पास्ट. बट अब जो भी होगा सब कुछ फेस होगा, जो भी बात करनी है आपको डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करनी है, जिसके वजह से जो भी सेटिंग्स होती थी, इंटरनल सेटिंग्स होती थी, वो काफी हद तक कम हो जाएगी, राइट. फोर्थ इज ऑल अबाउट द इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर. फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो आपको लगेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या रखा हुआ है. क्यों फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, कोई भी खर्चा करती है, वो बेसिकली 2 पॉइंट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज कैपिटल, सेकंड इज रेवेन्यू. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फ्रेंड्स ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल रेवेन्यू का मैं एग्जांपल देता हूं. जो गवर्नमेंट लोगों को सैलरी पेमेंट करती है, सब्सिडी के लिए जो भी पैसे देती है. थर्ड आई कैन से जो भी पर्सनल एक्सपेंस करती है, जो पार्लियामेंट के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं वो, राइट. फिर आई कैन से सब्सिडी आ गया, इंटरेस्ट पेमेंट आ गया, और आई कैन से जो भी एक्सपेंडिचर है जो हमको गवर्नमेंट को प्रोडक्टिव आई कैन से प्रोडक्टिव इफेक्ट नहीं देती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर की होती है, राइट. जिससे देश का कोई भी भला नहीं होता है, जस्ट खाली रिलैक्सेशन मिलता है. पर अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करें फ्रेंड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमको बहुत सारी जगह बहुत जगह पे इफेक्ट देखने को मिलता है फ्रेंड्स. कैसे देखने को मिलता है, एक एग्जांपल समझते हैं फ्रेंड्स. व्हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. फ्रेंड्स आपको सामने एक फिक्स एसेट्स दिख रहे हैं, कुछ भी टेलीविजन है, फैंस है, कुछ भी है, शिप्स है, फैक्ट्रीज है, एयरक्राफ्ट है, बहुत सारे फिक्स एसेट्स दिख रहे हैं. फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो ये सब जब ये सब मैन्युफैक्चर होती है, कोई भी कैपिटल चाहिए, अगर इसमें अगर हम फिक्स एसेट में जोड़ दे, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, मेट्रोस हो गए, कोई भी नेचर के हो गए, पर अगर वो फिक्स एसेट्स है, उसको कंस्ट्रक्ट करने में टाइम जाता है, ह्यूमन कैपिटल जाता है, लोगों का माइंडसेट मींस आई कैन से लोगों का माइंड अप्लाई होता है, इसके लोग पेमेंट मिलते हैं, पैसे मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, राइट. तो क्योंकि जो भी पैसा गवर्नमेंट खर्चा करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो वो प्रोडक्टिव नेचर का होगा फ्रेंड्स. ये बात तो आपको अभी समझ में आ गई होगी, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है फ्रेंड्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सब्सिडी दिया, फार्मर्स को सब्सिडी दे दी, तो फार्मर्स ने क्या किया, रखा सेविंग किया, यहाँ कहीं पे भी कोई भी एक्सपेंडिचर कर दिया. पर इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो भी पैसा यूज होगा वो प्रोडक्टिवली यूटिलाइज होगा और वो हमेशा प्रोडक्टिव भी रहेगा. ये बात तो पक्की हो गई है फ्रेंड्स, राइट. फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो ये अगर मैं आपको ये चार्ट पे लेता हूँ फ्रेंड्स, तो ये चार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का. तो 2015 में 2.85 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था. उसके बाद उसके नेक्स्ट बजट में 17-18 में जब मेरी 12th के एग्जामिनेशन चल रही थी उस वक्त बजट आया था फ्रेंड्स, तब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर 2.63 करोड़ का दिया था, जिसका हमको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला था मार्केट में. और मार्केट और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स मुझे 958 पॉइंट्स टूट गया था जस्ट बाय लिसनिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज़ वाली. और क्योंकि उस साल एक बड़ा गवर्नमेंट ने सोशल एक्सपेंडिचर किया था, जो अगर बात करें तो वो कह सकते हैं कि माँ कार्ड बोलते हैं ना फ्रेंड्स, माँ कार्ड का अच्छा खासा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसमें 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई थी टू ऑल द पुअर पीपल. तो वो एक टाइप का सोशल एक्सपेंडिचर था, अच्छी यूज के लिए यूज हुआ, सब समझ में आता है. पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, उसके वजह से मार्केट अच्छा खासा टूट गया था फ्रेंड्स, राइट. तो ऐसा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा. पर इस साल गवर्नमेंट ने 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लानिंग किया हुआ है फ्रेंड्स. इसके वजह से आपने उसका भी इफेक्ट देखा. तो फ्रेंड्स सेंसेक्स जो बूम हुआ है 2 फैक्टर की वजह से हुआ, जो अभी तक हमने डिस्कस किए. सबसे पहला बैड बैंक की रिगार्डिंग, और सेकंड इज ऑल अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये 2 रीजन की वजह से सेंसेक्स हमारा बूम हुआ है फ्रेंड्स.
राइट। मैं आपको साथ साथ में स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको रिलेट करते हुए चलूंगा फ्रेंड, जिसके कारण आपको सुनने में भी मजा आएगा, राइट। 6 पॉइंट इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सैनिक स्कूल। फ्रेंड्स, हम बोलेंगे सैनिक स्कूल से क्या पढ़ा है, स्कूल तो बन रहे हैं कि ये है वो केवी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल, हमको क्या फायदा, राइट। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो सैनिक स्कूल है वो काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द केंद्रीय विद्यालय फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी सैनिक स्कूल के जो एडमिन होते हैं, स्टाफ होते हैं, टीचर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द आर्मी पर्सनल एंड मोस्ट ऑफ देम आर आर्मी पर्सनल और आई कैन से द रिटायर्ड पर्सनल, राइट। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो स्कूल्स होगी, गवर्नमेंट का एम है कि टू डेवलप 100 सैनिक स्कूल इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद एनजीओस एंड प्राइवेट स्कूल्स, एंड द partnership will be such in such a way that the profitability will not get affected, education will not get affected, the fees that the institution, the senior school should not be affected. It should be nominal for all of us, and everyone should be capable to teach their students, their child in this particular type of school. Second, the aim of this development of senior school is to create a disciplinary education. Friends, अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स है, हम भी पढ़ के आए हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स, जो मेजर लैक हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो है डिसिप्लिन का। फ्रेंड्स, हम लोग जाते हैं स्कूल में, जाते हैं, पढ़ते हैं, जाके आते हैं, बस शाम को मजे करते हैं, पढ़ जाते हैं, और कुछ भी काम नहीं होता है फिर, राइट। स्टडीज के अलावा कुछ काम नहीं होता है। पर अगर आप सैनिक स्कूल में जाए, यूजुअली मैं वन ऑफ माय ब्रदर इज देयर इन सैनिक स्कूल, तो उन्होंने भी वहाँ पे पढ़ाई की हुई है। वो बोलते हैं कि हमको पढ़ाई से लेकर जो एक प्यून काम करता है वो भी हमको सिखाया जाता है सैनिक स्कूल के अंदर। और मीन्स हार्ड वर्क मीन्स फिजिकल हार्ड वर्क वो काफी ज्यादा होता है, जो आजकल के बच्चे जो भी प्राइवेट स्कूल से जो हमारा पे उस टाइप का कैपेबिलिटी कोई भी स्टूडेंट्स के अंदर नहीं होता है। और उस टाइप का जो आई कैन से दैट टाइप ऑफ चार्म दैट शुड बी देयर इन द टुडेस करंट स्टूडेंट्स, वो चार्म अभी भी नहीं दिख रहा है। तो वो चार्म रहे वो सैनिक स्कूल में दिखता है फ्रेंड्स। और जो भी बोर्डिंग स्कूल के फ्रेंड्स जो आर्मी पर्सनल मैनेज करते हैं अलग अलग के केंद्रीय विद्यालय में लेते हैं, तो वो स्टूडेंट्स का तो माइंड जो है वो काफी इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स दोस हु आर स्टडीइंग इन द प्राइवेट स्कूल इन द नियर देयर लोकल एरिया और इन द सिटी फ्रेंड्स। तो ये मेन पर्पस है गवर्नमेंट का कि टू प्रोवाइड अ डिसिप्लिनरी एजुकेशन। थर्ड, प्रोवाइडिंग आई कैन से इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स टू जॉइन द इंडियन आर्मी फ्रेंड्स। अगर बात करें तो एज पर द डेटा ऑफ एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, उन्होंने ऐसा कहा है कि हमारे पास हर साल 1000 कैडेट्स की आई कैन से वैकेंसी होती है कि हम 1000 कैडेट्स को सिलेक्ट करें अक्रॉस इंडिया, और ऑन एन एवरेज उनको खाली 500 से 600 बच्चे मिल पाते हैं एवरी ईयर फॉर एनडीए। सो बहुत सारा फोकस नहीं है फॉर द इंडियन आर्मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को खाली हायर एजुकेशन में जाना होता है और कोई भी आर्मी को ज्वाइन नहीं कर पाता है, राइट। और ज्वाइन करने की इच्छा भी नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने वो एनवायरनमेंट को फील नहीं किया है, तो वो एनवायरनमेंट फील कर पाए स्टूडेंट्स एट एन अर्ली एज और कैन सी द स्टूडेंट्स एज। सो वो भी एक मेन एम है टू एस्टैब्लिश द सैनिक स्कूल, राइट। 7 पॉइंट इज ऑल अबाउट द ग्रीन टैक्स एंड स्क्रैपेज पॉलिसी फ्रेंड्स। ये ग्रीन टैक्स खाली उन्हीं व्हीकल से लेवी होगा जो काफी पुराने हैं, आई कैन से मोर देन 15 इयर्स। और फ्रेंड्स, ये जो 15 इयर्स से पुराने वाले व्हीकल्स है वो पूरे इंडिया में सिर्फ 5% का कॉम्पोजिशन कैरी करते हैं, राइट। और इसका जो पॉल्यूशन है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जो 5% व्हीकल है जो 15 साल से पुराने हैं, वेदर इज कमर्शियल, टू व्हीलर्स, एनी टाइप ऑफ व्हीकल, वो 70% अकाउंट करते हैं फॉर द पॉल्यूशन ऑफ एंटायर कंट्री। तो ये भी बहुत बड़ा एम है क्योंकि दिल्ली जैसे सिटी में, मुंबई, अहमदाबाद, ये सब सिटीज में भी काफी ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है डे बाय डे, राइट। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन, दिस इज अ गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट, राइट। सेकंड इज ऑल अबाउट द टैक्स एंड second is all about the scrappage policy. Sorry friends, second policy is all about scrappage policy. What is scrappage policy? Scrappage policy means गवर्नमेंट ने एक ऐसा पॉलिसी एस्टैब्लिश किया है कि अगर आपके पास पुराना व्हीकल है और आप वॉलंटरीली चाहते हो कि मैं ये व्हीकल को बेच दूं, राइट, बेच के नया व्हीकल परचेस करूं, तो गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम लॉन्च किया स्क्रैपेज पॉलिसी, जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स हैं। पर आपको मैं शॉर्ट में बता दूं तो गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी टू बाय द न्यू व्हीकल एंड सेल आउट द ओल्ड व्हीकल, and the person who scrap their vehicles and purchase a new vehicle will also get a benefit in terms of various other government schemes also friends. This was all about the scrappage policy, right. The main aim from these two policies that to minimize the pollution, to provide a green initiative across the nation so that the nation can progress in a sustainable way without affecting our health and our country, right. 8 point, raising import duty and levying anti-dumping duty on certain commodity friends. ये
ये स्टेप भी मुझे काफी अच्छा लगा, राइट, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना काफी बड़ा अच्छा कदम है जो मोदी जी ने पहले आत्मनिर्भर प्लान के अंदर पहले से साफ कर दिया था। सेकंड, लेवरेजिंग द यूज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फ्रेंड्स अभी हमने देखा था कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वो लोग एक पॉइंट ये भी रेज कर रहे हैं कि हम लोग हमारे इंडिया में इतना सारा दाल हो रहा है, दाल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम बाहर से क्यों गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, कोई भी गुड्स होते हैं, कॉटन है, कुछ भी है, हमारे देश में इतना प्रोडक्शन हो रहा है तो हम बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं, राइट। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि थोड़े जो गुड्स है, जो कॉटन है, जो अलग अलग commodities है which are produced in the India and India can be self dependent upon the particular commodity, so government ने वो थोड़े बहुत commodities है उनके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, जिसके कारण जो भी लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाए और जो डोमेस्टिक गुड्स है, रिसोर्सेज है, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया है, जिसके कारण जो फार्मर्स है उनको एक सस्टेनेबल और आई कैन से ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ इनकम मिले फ्रॉम देयर प्रोड्यूस, राइट। थर्ड इज ऑल अबाउट द गिविंग फाइनेंशियल पेन टू चाइना। चाइना से वॉर चल रहा है, आई कैन से कोल्ड वॉर चल रहा है एट द बॉर्डर, एंड टू अफेक्ट देयर आई कैन से कंट्री, द गवर्नमेंट हैज प्लान टू impose an anti-dumping duty on certain goods, or I can say certain goods like mobile phone, in a solar panel, charger, in which there is steep increase of 5 to 10% in the custom duty rate. So this is all about the focus the government is having. 9 point is all about huge expenditure on health, infra and defense. Friends, अभी हमने कोरोना की सिचुएशन में देखा कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी वीक है एट द करंट स्टेज, और गवर्नमेंट ने ये फील किया कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी काफी इंप्रूवाइज करने की जरूरत है, और आने वाले समय में अगर कोई भी दूसरी पैंडेमिक आएगी तो नेशन सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो गवर्नमेंट स्ट्रेंथन कर रही है अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, और एंड एज वेल एज देयर बॉर्डर एरिया आल्सो, दैट इज लाइक चाइना, अक्रॉस चाइना एंड पाकिस्तान। सो ये भी अच्छा खासा एम है गवर्नमेंट का। और हम बात करें जो गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर किया है इस करंट एरा के जो बजट है 2021, तो उसमें ऑलमोस्ट 40% जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो दो सेक्टर में हुआ है, डिफेंस एंड सेकंड इज हेल्थ। ये तो वो हम कंबाइन करते हैं तो 35 to 40% जो एक्सपेंडिचर हुआ वो इन दोनों सेक्टर में हुआ है फ्रेंड्स, राइट। अदर पॉइंट that I can say, second, first is all about hydro energy mission will be launched, because hydrogen is a very cleanest fuel in across I can say on the earth. So government is planning to promote this particular sector, right. Second, compliance is in industry, especially for MSMEs, by scrapping the GST audit and tax audits whose turnover is less than 10 crore, if provided he is doing this transaction, receipt is collected in the I can say 95% of his receipt is collected in the electronic mode. तो ये compliance गवर्नमेंट ने कर दी है, जो उसके कारण compliance cost जो बढ़ता था MSME सेक्टर्स में, जो स्मॉल कंपनीज है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा फ्रेंड्स, which is quite helpful for all the companies, small companies, or I can say all the MSME sectors or companies, right. This was all about the positive points. अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स रिगार्डिंग फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहला है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीयूसी कंपनी। फ्रेंड्स ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर एनालिसिस है, मैं बात करूं ये वाला पॉइंट, तो हम कभी भी सुनते हैं गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को बेच दिया, हम बोलते हैं जाने दो यार, लॉस लगेंगे, क्या करेंगे रखिए, हम ऐसे भी गवर्नमेंट के पैसे खराब हो रहे, जाने दो, उड़ा दो। पर फ्रेंड्स हम खाली ये बात सुन के हमेशा हट जाते हैं कि हाँ जितने पीयूसी कंपनी सबको बेच दो, हमेशा ये सोचते हैं, गवर्नमेंट सबको कहते हैं हाँ बेचो जितने भी पीयूसी कंपनी सबको सेल कर दो फ्रेंड्स। पर हम कभी भी ये नहीं पढ़ते कि पीयूसी कंपनी क्यों बनाई गई थी, किसने एस्टैब्लिश की थी, किसके पैसे से एस्टैब्लिश की गई थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट हमको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि पीयूसी कंपनीज के जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो हमारे पैसे से, वो हमारे टैक्स के पैसे से हुआ है फ्रेंड्स। जो पहले हुआ है अभी हमको रिफ्लेक्ट नहीं होगा, पहले हमने बहुत मींस जो भी टैक्स कलेक्शन हुए थे उसके बेस पे गवर्नमेंट ने पीयूसी कंपनीज को एस्टैब्लिश किया हुआ फ्रेंड्स। So friends, let's have a look at the first look over the role of PUC companies in Indian economy, so that आपको जो भी clear idea मिल जाएगा इस concept के regarding friends। सबसे पहला है generation of income, second is all about the capital formation, third is providing employment, fourth is all about the infrastructure development, fifth point is all about strong industrial base, sixth point is all about export promotion and import substitution, seventh point is all about the contribution to central exchequer, eighth point is all about checking concentration of income and wealth, 9 point is all about removal of regional disparities friends। गवर्नमेंट का रोल खाली गवर्नेंस तक नहीं रुकना चाहिए, ये रोल के साथ गवर्नमेंट
जो पहले की जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने पीयूसी को एस्टैब्लिश किया कि गवर्नमेंट अगर कंट्री में कोई भी डिस्पैरिटीज होती है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इनकम एंड एक्सपेंस, आई कैन से गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच, तो उस डिस्पैरिटी को बैलेंस करने के लिए प्राइवेट सेक्टर तो रहेगी, क्योंकि 1991 में जो मनमोहन सिंह की पॉलिसी लाई थी उन्होंने थोड़ा लेवरेज किया था प्राइवेट सेक्टर को, प्रोवोक किया था कि आप भी आके काम करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कंपनीज को बेच डालोगे, राइट? क्यों बेच डालोगे, मैं आपको बात करता हूँ कि आने वाले समय में क्या क्या होगा, पिछले 5 सालों में क्या होगा वो भी आपको बता दूंगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इन द लास्ट 5 years government of India, or I can say NDA government, they have sold 3.6 lakh crore rupees. They have generated, I can say, they have generated 3.6 lakh crore rupees by disinvesting their stakes in PSU companies. I can say disinvested means हमारा जो टैक्स कलेक्शन में जो पैसा क्रिएट करके जो कंपनीज बनाई गई थी पीयूसी कंपनीज, राइट? और पीयूसी कंपनी सारे लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कौन सी कंपनीज के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो लास्ट टाइम ये जो फिगर्स है फ्रेंड्स बहुत छोटा मोटा फिगर नहीं, काफी बड़ा फिगर है, जो अभी आपको सुनने में लगता है बेच दिया, क्या फर्क पड़ता है आपको? कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो 5 सालों में गवर्नमेंट ने 3.6 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट किया है। तो और जो जिस कंपनीज के लिए डिसइन्वेस्टमेंट किया है फ्रेंड्स, उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि कंपनी के फीचर्स क्या थे, राइट? सबसे पहला है कंपनीज, दोज कंपनीज इन व्हिच गवर्नमेंट हैज डन द डिसइन्वेस्टमेंट, they are growing currently, and in the last 5 years they are growing with the compounded annual growth rate of 5% to 40% every year. Second, good dividend track record. Third is all about the strong fundamentals. All these 3 features are there in all the PSU companies in which the government has done the disinvestment in the last 5 years. और अब अभी रिसेंटली बात हुई है LIC के रिगार्डिंग फ्रेंड्स। LIC कंपनी ऑलमोस्ट अराउंड 10 लाख करोड़ की कंपनी है, जिसके लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो अपना 10% स्टेक बेच के मार्केट से पैसे उठाने की बात कर रही है। तो 10 लाख करोड़ का 1 लाख करोड़ में 10% ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपए होता है, राइट? पर फ्रेंड्स जो LIC कंपनी बनी वो 1 साल 2 साल की मेहनत से बनी है। पास गवर्नमेंट से उन्होंने काफी ज्यादा काफी फोकस से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया होगा फ्रेंड्स, और जिसका मैंने आपको पर्पस भी आपको दिखा दिया कि गवर्नमेंट पीयूसी कंपनीज का पर्पस क्या है एस्टैब्लिशमेंट करने का, तो आप ये समझेगा वो अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स, राइट? तो LIC का IPO आ रहा है और इसके वजह से मार्केट पॉलिटिशियन भी सारे बोल रहे हैं कि ये पॉइंट काफी नेगेटिव हो, और जो भी मिडिल क्लास वाले फैमिलीज है उनको खाली मीडिया में एक चीज दिखाई जा रही है, एयर इंडिया है लॉस मेकिंग कंपनी है, ये लॉस मेकिंग कंपनी है, अच्छा करिए गवर्नमेंट, पर हमको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट ने पीछे से कितनी कंपनीज को बेच दिया है इन द मार्केट इटसेल्फ ओनली। तो आपके सामने बहुत सारी कंपनीज दिखेंगे फ्रेंड्स, HAL है, रेल विकास निगम लिमिटेड है, भारत डायनामिक्स है, ISPC है, NHPC है, NLC इंडिया है, TACC इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल है, राइट्स है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, रूरल RAC है, NMDC है, नैल्को है, ऑल इंडिया है, और ऐसी 15 से 20 कंपनीज है। और अगर मैं आपको बोलता हूँ, आपको मैं बैठ देता हूँ फ्रेंड्स कि आप ये कंपनीज को एनालाइज करिए, ये कंपनी में कहाँ से लॉस है, 1% का भी लॉस नहीं, 1% का भी लॉस नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर गेल इंडिया भी आएगा, हमने ऐड नहीं किया स्पेसिफिकली, गेल इंडिया आएगा, SBI आएगा, और आई कैन से इवन ONGC भी आएगा। 1 साल लॉस होता है, डजंट मीन कि आप उसको फटाफट स्पीड में बेचते जाओगे, राइट? और आपको किसी को कुछ पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट अभी भी नेगेटिव पॉइंट मार्केट ने बना हुआ है। हम पॉलिटिशियन बोलते हैं, जो ऑपोजिशन आके बोल के चला जाता है, पर हम लोग सुन लेते हैं हाँ तो कोई पड़ी नहीं है, इनको निकालो यहाँ से। हम इतने विवरण हो जाते हैं पीयूसी कंपनीज को लेकर कि पीयूसी कंपनीज क्या है, कुछ नहीं है। हमको वो पता नहीं है कि सालों की मेहनत लगी है, सालों का टैक्स कंट्रीब्यूशन हुआ टैक्स पेयर का वो पीयूसी कंपनीज को बनाने में, और हम बोलते हैं जानन। ओके, सो ये काफी बड़ा फैक्टर है जो बहुत नेगेटिव लगा हमको मार्केट में, और इकोनॉमिक्स तो बोलेंगे नहीं इसके बारे में, राइट? ओके, सेकंड नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इनकम टैक्स मेजर चेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो चेंजेस इन द इनकम टैक्स लिमिट। सेकंड, इंटरेस्ट इनकम एट्रिब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट मोर देन 2.5 लाख इज टैक्सेबल। फ्रेंड्स, ये जो मैंने सेकंड पॉइंट लिया इसमें खाली पीएफ का पॉइंट डिस्कस करना था मुझे, कि जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम प्रोविडेंट फंड में, आई कैन से पेंशन फंड में, तो जो भी इन्वेस्टमेंट हम 2.5 लाख से ऊपर करते हैं और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट एट्रिब्यूटेबल होता है वो टैक्सेबल होगा फ्रेंड्स। अभी तक हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करते थे पीपीएफ में, कोई भी पोस्ट इन्वेस्टमेंट में, तो उसमें से जो भी इंटरेस्ट मिलता था वो टोटली एग्जाम हुआ करता था इन अवर इनकम टैक्स फॉर्म्स और आई कैन से इन इनकम टैक्स रिटर्न। बट इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग आई कैन से डूइंग इन्वेस्टमेंट इन द पीएफ of almost around more than 2.5 lakh, so
any interest income over and above 2.5 lakh will be taxable in your income tax return from this current financial year, right? This was all about second point. Third point is all about no changes in deduction. 80 में कोई चेंज नहीं है इस बार फ्रेंड्स, राइट? तो फ्रेंड्स ये जो चेंज है काफी क्यों नेगेटिव पॉइंट्स है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स अभी कोविड एरा चल रहा है, क्योंकि पास थोड़ी बहुत जो इनकम आ रही है, तो मिडिल क्लास फैमिली जो है, जो थोड़े अपर क्लास, थोड़े मिडिल क्लास, इन बिटवीन ऑल द टाइप ऑफ फैमिलीज, सबको एक एक्सप्रेशन देगी गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड देगी इन टर्म्स ऑफ कोविड डिडक्शन, स्पेशल डिडक्शन, राइट? स्लैब रेट्स में कुछ चेंज करेगी, कुछ भी चेंज नहीं किया तो गवर्नमेंट का एक एम तो अभी भी क्लियर है, जितना हो सके उतना मार्केट से फायदा उठाओ, राइट? थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, पासिंग द पार्सल। फ्रेंड्स अभी इंडिया में हो क्या रहा है, आने वाले मैं पिछले 5 सालों से मैं स्टडी कर रहा हूँ, अगर इकोनॉमिक्स बोल बोल के थक गए और मीडिया दिखाती नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, पर मैं आपको आज भी डिस्कस करूंगा कि पासिंग द पार्सल का गेम कैसे चल रहा है फ्रेंड्स। सपोज हमको पता है कि पासिंग द पार्सल का गेम का देखो हम घुमा दे, हम एक एक बॉल पास करते हैं, फिर जब गाना बंद होता है तो जो भी कुछ होता है, जो भी इवेंट होता है क्रिएट करते हैं, वो सब चलता रहता है, राइट? पासिंग द पार्सल गेम सब ने खेला है। तो अभी इंडिया में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमको अच्छे अच्छे इंसेंटिव दिखा रही है, अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिखा रही है, पर फ्रॉम द बैक गवर्नमेंट इज टेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं सेस के रिगार्डिंग, राइट, तो अभी एक नया सेस इंक्लूड हुआ है एग्रीकल्चर सेस। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम एग्रीकल्चर सेस को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको डेवलपमेंट के लिए हम चार्ज कर रहे हैं। बीच में स्वच्छ भारत का आया था, तो फ्रेंड अब चार्ज के लिए इसने मना किया है, पर इतने इतने आई कैन से द रेट व्हिच इज वेरी आई कैन से इट इज टाइप ऑफ मोनोपोली द गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग, और आई कैन से द कंट्री इज गोइंग टुवर्ड्स अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, राइट? So I can say this agriculture cess upon the petrol and diesel is a major point for all of us, and this is I can say government intention is not right towards the middle class family and the lower class family, right? Because everyone is going to use this particular thing for through their daily life. Friends, अगर हम बात करते हैं सेकंड पर्सन में सेकंड पॉइंट की बात करूं इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग फ्रेंड्स, तो इन्फ्लेशन की जब भी बात आती है मार्केट में, तो कोई भी इकोनॉमिक्स होगा, हमको स्कूल में पढ़ाया गया कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, महंगाई क्यों बढ़ती है। तो महंगाई सबसे पहले बोलते हैं हमारे इनकम बढ़ती है, तो होता है, राइट? समझ में आता है, लॉजिकल। सेकंड मनी सप्लाई, जब आरबीआई नोट्स प्रिंट करती है मार्केट में, तो मार्केट में बहुत सारे पैसे आते हैं, सबके पास पैसे होते हैं, जिसके वजह से लोगों की इनकम बढ़ जाती है, और इसके वजह से जो प्राइसेस होते हैं कमोडिटीज के वो बढ़ते जाते हैं। जब भी पॉइंट आता है इन्फ्लेशन का, पर कभी भी ये पॉइंट नहीं आता है एग्रीकल्चर जो भी पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगती है फ्रेंड्स। करेंटली अगर हम बात करें तो पेट्रोल के ऊपर हमारे इंडिया में लगता है 70% टैक्स, 70% टैक्स लगता है हमारे पेट्रोल के ऊपर फ्रेंड्स। अगर बात करूं बीइंग एज अ स्टूडेंट, अगर मैं अपने ऑफिस में आओ जाऊँ, मेरा मंथली एक्सपेंस होता है 500 रुपीज का, तो 500 का 70% अप्रॉक्स में निकालने जाओ फ्रेंड्स, तो ऑलमोस्ट अराउंड आई कैन से 350 रुपीज मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ। और अगर मैं थोड़ी दिन बाद अच्छा खासा इनकम कमाऊंगा, तो मैं सोचूंगा कि मैं गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करूँ, ऐसी भी इच्छा नहीं होगी, इससे अच्छा लगेगा कि अब कुछ नहीं करना है, छोड़ देते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ रैपिड फायर बॉल फेंक रही है गवर्नमेंट टैक्स का, जो हमको समझ में नहीं आता है, और हम सोचते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट भी पहले चार्ज करती थी। तो बाय द वे फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी, तब उस समय पेट्रोल पर टैक्स लगता था ऑलमोस्ट अराउंड I can say 60. I'm not having data. Otherwise, I can show you. The tax percentage was almost around 45%, which is currently at 70%. 70%, friend. At that point of time, the tax was there. I can say, but 70%. This type of steep increase is there. So अगर बात करें तो friends, गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ा है, तो कलेक्शन बढ़ा तो एक्सपेंस भी होगा, तो एक्सपेंस होगा तो मार्केट में भी लगेगा, हाईलाइट भी होगा। तो हमको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट का जो कैसे डेवलपमेंट है स्पीड में दिख रहा है, बहुत कुछ फास्ट हो रहा है, पर वो भी समझ में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट का कलेक्शन है वो भी डे बाय डे बढ़ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ द कंट्री इज ग्रोइंग बट बिकॉज द चार्जेस लेविड बाय द गवर्नमेंट इज आल्सो इंक्रीजिंग फ्रेंड्स। तो ये बात भी हमको अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी फ्रॉम दिस बजट आल्सो, क्योंकि 3 से 4 साल में हर साल कुछ ना कुछ पेट्रोल या डीजल में गवर्नमेंट को पता है कि पेट्रोल डीजल है वो उनका एक मेजर इशू है। हम मानते हैं, सब मानते हैं कि पेट्रोल और डीजल पे गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है, मिलना चाहिए, पर कोरोना पैंडेमिक में पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल का भाव डाउन था, पर इंडिया में जो ऑयल का प्राइस था डाउन नहीं हुआ फ्रेंड्स, वो वहाँ का ऑयल सेगमेंट रह गया, गवर्नमेंट
को सस्ते में पेट्रोल मिला जाता, गवर्नमेंट के साथ में भाव घट रहा था, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाई जा रही थी, लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ये बात गवर्नमेंट को पता नहीं, इसकी वजह से गवर्नमेंट अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट किया और लोगों को फूल किया, राइट। ओके, तो अब लास्ट चलते हैं, लुक्स टू बी अ मिनी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो फॉर ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 3 से 4 प्रोजेक्ट्स के नाम लिए, हाईवेज के, रोड्स के, ब्रिजेस के और मेट्रो के, जो बेसिकली 4 स्टेट्स में होंगे। गवर्नमेंट ने खाली अपने बजट में ये 4 स्टेट्स के नाम मेनली एम्फसाइज किया, दैट इज वेस्ट बंगाल, असम, केरला, दिल्ली एंड ऑल अदर स्टेट। सो ये 4 स्टेट्स के गवर्नमेंट ने नाम लिए थे। तो मार्केट में ये भी बात चली कि ये क्या कर रही है गवर्नमेंट, राइट। तो ये 4 स्टेट्स को मिले प्रोजेक्ट्स, बाकी के स्टेट्स का क्या। और ये जो भी स्टेट्स है फ्रेंड्स, ये जो नॉन रूलिंग गवर्नमेंट है इन दिस पर्टिकुलर स्टेट्स, इन यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तो लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि ये बजट क्या रहा, क्योंकि मिडिल ग्रुप वाले, मिडिल फैमिली इनकम वाले काफी नाराज है अभी मोदी गवर्नमेंट से। और अभी सर्वेज आए, बहुत सारे इकोनॉमिकल सर्वेज आए कि इंडियन रूपी का भी आ जाएगा सर्वे कि एक्सपेक्टेशन क्या है मिडिल क्लास, जो मिडिल एज ग्रुप वाले, तो जो भी रूल्स थे, जो भी एक्सपेक्टेशन, सबको खत्म कर दिया ये गवर्नमेंट ने एट अ स्ट्रेच पॉइंट आल्सो, राइट। अभी इलेक्शन से तो गवर्नमेंट को पूरा ये कि हाँ कुछ ना कुछ करते हैं स्टेट्स के लिए, जो जहाँ पे हमको सीट्स बढ़ जाएगी, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली बात करें कंक्लूजन में क्या क्या निकल के आता है। सबसे पहला, दिस बजट इज एडवांटेजेस फॉर स्टार्टअप्स, farmers, banking industry, infrastructure companies, NBFC, 60s or MSME with an aim to enhancing the, I can say, less tax compliances, right. Second, it is not advantage, it is for the middle class family. Second, for the small businessman. Third is for the tax consultants, CA and the chartered accountants and company secretaries. Fourth is all for the service sector friends, tax consultant की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कम्युनिटी में एंड सीएस कम्युनिटीज में, जहाँ पे टैक्स की लिमिट्स बढ़ा दी है, जिसकी वजह से जो क्लाइंट्स का जो बेस है काफी कम होगा आने वाले समय में, राइट। तो ये इस वजह से जो ये कम्युनिटी टैक्स कंसल्टेंट की कम्युनिटी है, वहाँ पे काफी ज्यादा आई कैन से एंगर है इन दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, राइट। So this was all about the budget analysis, and I hope you like this particular analysis, and I can assure you to provide some of the analysis of the stocks in the upcoming time, because in the past I was not able to provide some of the analysis related to the stocks, and I am providing through my WhatsApp status and Telegram channel about the stocks, right. I hope, and I want to tell you to share this particular video to each one of your family members, okay, so they can get the better idea about this.